गुड मॉर्निंग। ये हमारी एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। नेम रिएक्शन सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। अब तक हमने पढ़ा व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म, हाउ अल्फा डाइकीटोन्स और 1,2 डाइकीटोन्स आर कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सी एसिड्स, एंड देन की स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, हाउ वी कैन राइट डाउन इट डायरेक्टली, प्रोडक्ट कैसे लिखा जा सकता है, कौन सा एराइल ग्रुप माइग्रेट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें आपने पढ़ी। आज हम देख रहे हैं सम मिसलेनियस रिएक्शन विद एप्लीकेशंस ऑफ बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। इसके अंदर एक एग्जांपल मैंने लिखी है और लेट अस सॉल्व इट कि कैसे हम कर सकते हैं। देखो बहुत सारे स्टेप्स हैं इसके अंदर, तो काफ़ी रिवीजन होगा आपका इनसे, और रिएक्शंस के बारे में कैसे हम रिएक्शंस करते हैं ये पता चलेगा। ओके, जैसे हमने स्टार्ट किया विद दिस इज द रिएक्टेंट गिवन टू अस इन द बिगनिंग and see various steps. We will try to write down all the steps. First, treated with the acid. Now you see acid treated with this acid, it will attack this, and as a result of this, oxonium ion will be formed, and the product formed will be like this, 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 this. Oh, one electron pair will be left. H count this, and this will get a positive charge. This. Now after this, what will happen? This will take up the electron pair. This electron pair will be taken over here, and then this will move over here, and after this moves, positive charge will come at this position. That is, it will be like this. सारे स्टेप्स बहुत ध्यान से देखिएगा आराम से क्या हो रहा है यहाँ पर। OH, तो अगेन व्हाट वी आर गेटिंग इज नाउ OH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड आपके, एंड पॉजिटिव चार्ज विल बी एट दिस पोजीशन। नाउ आफ्टर दिस बहुत आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। दिस मिथाइल ग्रुप विल शिफ्ट ओवर दिस विल बी कॉल्ड 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ड्राइविंग फोर्स भी आपको पता चल रही है, कितनी बार ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि वाई दिस शिफ्टिंग इज बीइंग टेकन प्लेस। तो व्हेन 1,2 मिथाइल शिफ्ट टेक्स प्लेस एट दिस पोजिशन, positive charge will come at this position. This is methyl group already there. Here also methyl 1H is already there, and here you will get the positive charge, and here it is OH. Now then, because we have heated it, deprotonation, and as a result of deprotonation, the product formed will be this. Now see how many things we have done for doing only reaction with H plus. तो H प्लस से रिएक्शन करने के लिए देख लो कितने सारे स्टेप हमें करने पड़े। अभी तो इसमें बहुत सारी और रिएक्शन दिए हैं। सी, दिस वाज फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, एज ए रिजल्ट ऑफ विच दिस इज कन्वर्टेड इनटू दिस फेनोलिक कंपाउंड। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप्स आर वेरी इजी एज कंपेरेटिवली। नेक्स्ट स्टेप इज हीटेड विद जिंक। नाउ यू नो व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद जिंक व्हाट हैपन्स? रिडक्शन, तो इट विल बी रिड्यूस्ड टू, दिस कंपाउंड विल बी रिड्यूस्ड। चलो यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह मैं इसे लगा देता हूँ सिंपल, और इट विल बी रिड्यूस्ड। हेयर वी हैव CH3, हेयर वी हैव CH3. दिस इज orthoxylene is the product formed. After that, heating with zinc, we have oxidizing agent alkaline KMnO4. Alkaline KMnO4, you know. After this is a oxidizing agent, and it will oxidize it to acid, and as a result of this, we will get this group is converted into acid, this group is also converted into acid. This is this. After that, see, heated with sodium hydroxide, that is soda lime. You know what is the function of soda lime? Soda lime से heat किया. Next, what is the function of soda lime? It will subject it to decarboxylation, and as a result of decarboxylation, this is the product formed. C, final. This is, you can say, A. This is the A formed. So many steps we have done in this reaction. 4 steps. After 4 steps, we are getting A, and A is very simple, benzene. Now from benzene, you can see what is this? Phthalic anhydride in presence of AlCl3. Phthalic anhydride in presence of AlCl3. What will be done? What you know? This will be a Friedel-Crafts, short में लिख दिया मैंने, Friedel-Crafts reaction will takes place. Friedel-Crafts reaction will takes place, and as a result of this Friedel-Crafts reaction, you can see, बहुत ध्यान से लिखना होगा Friedel-Crafts reaction में आपको। देखो प्रोडक्ट, इसको देख के लिखना होगा। देखो C डबल बॉन्ड हो,
After C double bond O, we are having CH2, then again CH2, CH2 के बाद then again C double bond O, and that O will be converted into OH. OH क्योंकि H is replaced from this. Here you have already got the H. Then you are heating it with phosphoric acid. Now with phosphoric acid, dehydration will take place. What will happen? This dehydration will take place, and as a result of this dehydration, you will get this type of compound. तो काफ़ी प्रैक्टिस हो रही है आपकी, बहुत सारी रिएक्शंस आ गई हैं, और ये कंप्लीट दी रिएक्शन ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे को डिफ़िकल्ट, जो कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो तो बहुत ध्यान से अपन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज you are doing it with, I think this everybody remember this zinc amalgam and HCl. We are doing reaction with zinc amalgam. What is this reaction? No, Clemenson's reduction. It is Clemenson's reduction. So Clemenson's reduction, it will be reduced to this. This is the product formed as a result of this. Now बहुत बार हम सिंथेसिस में यूज़ करते हैं, आपको याद होना चाहिए पैलेडियम कार्बन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैलेडियम कार्बन? पैलेडियम कार्बन के साथ हमने हीट किया. व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट्स फंक्शन इज ऑलवेज, रिमेंबर, डिहाइड्रोजिनेशन. इट विल सब्जेक्ट इट टू डिहाइड्रोजिनेशन, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिहाइड्रोजिनेशन प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी, चलो बॉन्ड दिखा देते हैं इसके अंदर, लाइक दिस नेप्थलीन इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड. Naphthalene is the product formed as a result of this. So you can say this is your compound number B. After so many steps we are getting this. You can see how many steps we have completed, 4 of this and 8 steps. First step was benzene. You can say how benzene is converted to naphthalene. This we have covered in this reaction. After this we are doing reaction with oxalyl chloride in presence of AlCl3. Now you can see what is oxalyl chloride. COCl in presence of AlCl3. Now again it will be a Friedel-Crafts reaction. Now as a result of this Friedel-Crafts reaction, this will form, the product formed in this will be acylation, and as a result of that acylation, okay, मैं इसको थोड़ा ऐसे ही दिखा दूँ, थोड़ा इजी रहेगा, जल्दी हो जाएगा. दिस इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म. अब आपको समझ में आ गया कि क्या प्रोडक्ट है. इसके बाद तो रिएक्शन आपको आती है, क्योंकि यही रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं. जो रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं वो हमारे दिमाग में हमेशा होती है. अल्फ़ा डाइकीटोन इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म. और अल्फ़ा डाइकीटोन के बाद हमने रिएक्शन किससे करवा दिया इसका? एल्कली इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल. यू कैन से ये रिएक्शन तो आपको पहचान में आ ही रही है. व्हाट इज़ दिस? बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट. इसका तो आपको कितनी बार कर चुके, 4 मेंबर्ड रिंग. नाउ दिस 4 मेंबर्ड रिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 मेंबर्ड रिंग. दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग, अदरवाइज यूँ 5 है तो 5 विल बी कन्वर्टेड इनटू 4. 5 मेंबर्ड रिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू 4 मेंबर्ड रिंग. 1 2 3 एंड दिस 4. यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? OH ग्रुप एंड एसिड ग्रुप. सिमेट्रिकल थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कैसे भी लिख सकते हैं. लेकिन यहाँ अगर कोई दूसरे ग्रुप आ जाएं तो हमें ध्यान रखना होता है कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा. डू यू रिमेंबर कौन सा ग्रुप माइग्रेट करते हैं? जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिस पे होते हैं उसको नहीं करते, जिस पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगे होते हैं उसको माइग्रेट करते हैं टुवर्ड दिस. सो व्हाट ए रिएक्शन इट इज़. कितने सारे स्टेप्स इसके अंदर आए और आपका खूब अच्छा रिविज़न हुआ इस रिएक्शन से. आई होप यू लाइक दिस रिएक्शन. ठीक है, बहुत अच्छी तरह देखिएगा, बहुत काम की रिएक्शन है. बहुत सारी रिएक्शंस इसमें सीखने को मिल रही हैं आपको विद द एप्लीकेशन ऑफ बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट. और रिएक्शन लेता हूँ मैं, 1-2 एग्जांपल और लेते हैं आपको इसके लिए. लेट मी टेक सम मोर एग्जांपल फॉर यू. बहुत ही सिंपल से एग्जांपल मैं बताता हूँ. देखो आपको एक एग्जांपल और बताते हैं आपको. देखो जितनी स्पेस है उसके अकॉर्डिंग लेट मी टेल यू वन मोर एग्जांपल फॉर यू. एक एग्जांपल बताता हूँ देखो आपको. नेक्स्ट एग्जांपल में लेट अस सी. say you have this बाइफेनाइल. शायद अब आप बिल्कुल अपने आप कर लेंगे, देखो जो स्टेप्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग. एंड दिस बाइफेनाइल group is treated with again
थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऑक्सैलाइल क्लोराइड के बजाय डायरेक्ट लिखने के बजाय कई बार ऐसे लिखा होता है ऑक्सैलिक एसिड, देन SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ BCl3 लिखते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड के बजाय कभी कभी क्या लिखा होता है BCl3 इट इज़ रिटन, एंड देन दिस इज कन्वर्टेड इनटू, ये तो आप पहचानेंगे कि यहाँ पे B हो जाएगा। तो दिस इज उसके कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल, लेकिन ये क्लू है हमारे पास कि ए शुड बी अल्फा डाइकीटोन। ए क्या होना चाहिए इसके अंदर, अल्फा डाइकीटोन होना चाहिए। और अल्फा डाइकीटोन के लिए यहाँ पर हमने रिएक्शन कराया बाइफिनाइल का फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप चलो यहीं लिख देते हैं इसके कंटिन्यूशन में। फर्स्ट स्टेप इससे क्या होगा, ये बाइफिनाइल है, दिस बाइफिनाइल देखो ऑक्सैलिक एसिड विद SOCl2 विल फॉर्म ऑक्सैलाइल क्लोराइड, अगेन ऑक्सैलाइल क्लोराइड दैट इज COCl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के बजाय क्या लिख दिया यहाँ पर BCl3, अगेन इट इज़ ए लेविस एसिड, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगा, अगेन इट इज़ ए फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो अब ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन तो अभी हमने किया है बिल्कुल वैसा का वैसा एसाइलेशन, थोड़ा लिखने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा इसके अंदर, दिस ओके। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये COCO, ये C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, दिस इज दिस। और इसके बाद तो अभी हमने किया नेक्स्ट रिएक्शन, इट विल बी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह आ चुका है। और इसके अंदर तो ये करना है, ये ग्रुप लगाया और यहाँ पे हमने एक ग्रुप शॉर्ट कर दिया, एक रिंग OHCOOH, अगेन सिमेट्रिकल था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है प्रोडक्ट में, डन। सो आई होप यू एंजॉयड दिस रिएक्शन। अभी और एग्जांपल देता हूँ, देखो थोड़ी और जगह बची है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल बनाता हूँ इस पर, एक और अच्छा एग्जांपल देते हैं आपको। देखो इसका पार्शियल पार्ट तो मैं करा चुका हूँ आपको, लेकिन एक पार्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। सी दिस इज़ योर फ्यूरान टू एल्डिहाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं फरफ्यूरल, ये हेटेरोसाइक्लिक में नाम पढ़ते रहते हैं फरफ्यूरल। अब फरफ्यूरल का रिएक्शन जो है करवाया, साथ साथ कर देते हैं इसके अंदर में, फिर जगह नहीं बचेगी थोड़ा सा। तो पोटाशियम साइनाइड एंड मेथाइल अल्कोहल, दिस इज पोटाशियम साइनाइड एंड मेथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराया। तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज दिस एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड विद पोटाशियम साइनाइड एंड मिथाइल अल्कोहल, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ते रहते हैं। कौन सी रिएक्शन होती है ये, बेंजॉइन कंडेंसेशन, बेंजॉइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एज ए रिजल्ट ऑफ बेंजॉइन कंडेंसेशन रिएक्शन, यू नो व्हाट हैपेंस, this will be converted into this type of compound with benzoin condensation. Hydroxy ketones are the product formed, condensation of two molecules condense. Now this you have already done this reaction, ये हो गया benzoin का प्रोडक्ट हो गया, this is the product formed। अब इसका हम अगर ऑक्सीडेशन कर दें PCC, pyridinium chlorochromate, this OH group will be oxidized to keto group, and when it is oxidized to keto group, if you remember, you have already done, मैं नाम लिख रहा हूँ इसीलिए डायरेक्ट, the product formed will be furyl, and furyl on treatment with alkali and alcohol will form what, ये रिएक्शन हम कर चुके हैं इसलिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, you remember it, you can see हमारे previous video देख सकते हैं। Product formed is furylic acid, product formed will be furylic acid in this, furylic acid टाइप के जो प्रोडक्ट है वो बनता है। तो वी हैव सीन सम एप्लीकेशंस ऑफ BBR, बेंजिलिक एसिड रिएजेंट के कुछ एप्लीकेशन हमने देखे। इससे मतलब ये भी था कि हमको बहुत सारी रिएक्शंस आनी चाहिए, तो हम कंप्लीट दी रिएक्शन के जो बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं वो हम कर सकते हैं। ओके, कीप डूइंग योर वर्क। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नई नेम रिएक्शन के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।